A very good evening to all and the dignitaries and all the students. I, Preeti Tagre, President, Praisal Foundation, welcomes you all in Atmantan series organized by Pharmaceutical Royal International Society, where we can share our views and real fact and figures, those we are associated with recent criterias. As you know, today is the day we are going to celebrate a World Environment Day. It is the most renowned day for environmental action since 1974. It has been celebrated every year on 5th June. This year, the theme is biodiversity, a concern that is both urgent and existential. As we know that the emergence of COVID-19 has underscored the fact when we destroyed biodiversity, we destroyed the system which supports our human life. And this COVID-19 has given an alarm, the call for the nature, and the nature calls and nature message for us. And this is the time when we should also get alert ourselves. So for this reason, we decided to take a topic today's for our deliberation and our Atmavintan, the nature, the time for back to basics. Back to basics is really needed, which we observed. Like all the things are artificial. The only thing is that nature, which is the art of God. सभी चीजें कृत्रिम है क्योंकि प्रकृति जो कि ईश्वर की देन है. Almost all are we tried that we can plug life. We can think life is to plug a crystal and a plant a flower. Means हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं कांटे निकालने में और फूल लगाने में. यही हम अपनी जीवन में भी अपनाते हैं. और आज कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि ह्यूमैनिटी जो है सबसे मेन चीज कहला रही है. यही आज सामने आ रही है इस कोविड-19 चैलेंज में. हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे लगा हुआ है लोगों की मदद करने में, और यही चीज हमें आगे लेके जाएगी. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने ये आत्म मंथन सीरीज स्टार्ट की है. और आज मेरे साथ जुड़े हैं His Excellency Ambassador Human Charger Sir Vishwas Julka. He is the renowned world sales leader, motivational speaker, social reformer. He is recipient of various awards. His profile is very big. I'm just briefing the main. He's a recipient of Motivational Speaker Award by Ministry of HRD. He is the Edupreneur of the Year Award by Ministry of Education. He is the most admired leader in India for skill development. He is pride of India. He is also role model for futuristic education in India by Ministry of Higher Education, AICTE. Apart from that, he is a very beautiful soul he is having. I welcome you once again, sir. Thank you, Professor Preeti Tagre, and really appreciate the initiative that you have been taking one over the other over last few months since the lockdown has happened. It has like people have gone to the negative side, but you have really trying to come up with double power and energy and bring a lot of good things. So congratulations to the Pressel and to you in person with this series of webinars and the talk sessions and the seminars. So it's really appreciable. So I think a true inspiration for many of us and people who are joining. So thank you very much for the kind words you used for me. I'm a normal human being and know Professor Preeti for some time now. And like
she told me beautiful soul. She herself is a very beautiful soul, and I would say that on the World Environment Day, she has given a brief introduction uh, that what actually it is. It is when it started getting celebrated, and she talked about the basics that we need to adapt, right? And she very clearly said that everything is artificial, which is true. मैं उसको कहता हूँ कि everything is a myth. So there's nothing really in reality. It's all myth. Like people say ke, he's say Mukesh Ambani is very rich. That's a myth. Because for Mukesh Ambani, I am poor. For me, my maid is poor. For my maid, maybe a beggar is poor. So there's no end to it. So that's a myth. So welcome you all and thank you everybody to join. So Professor Preeti, हम कैसे इसको लेके जाएं? I think we should keep Hindi English mix. And please feel free to put your questions and interrupt if there's something to be discussed. Yeah. See, as you know that this year the theme of the World Environment Day is biodiversity, and everything is associated with it. And Yes. in this condition, we see there are so many changes because हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत से नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हम देख रहे हैं, जैसे कि COVID-19 इज वन ऑफ दैट. सो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि क्या बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है और आप ये सभी को बताएं. देखिए now biodiversity, if we talk, if we tell it in Hindi, it is something like विविधता का जश्न बनाएं. So biodiversity को if we take it to take an example of a country, so India is a country of biodiversity in terms of social, political, cultural thing. So this biodiversity is something that now last year the theme of this environment day was that let's beat air pollution. चाइना ने रखा था एयर पोल्यूशन के लिए कि मिलके वायु प्रदूषण को हटाएं. सो सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है जो हम बात कर रहे हैं इस साल में दैट बायोडाइवर्सिटी और विविधता को सेलिब्रेट करें हम लोग. जैसे इसकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज रिलेटेड टू the things that you already told that is the outcome of what we have, I would say, misuse the nature or misuse the environment. So इसमें सबसे पहला point है कि हम awareness raise करना चाह रहे हैं. That the theme was kept that let's raise awareness among the society across the globe. One Earth was the first theme when it was started in 1974. That only one Earth was a theme of first World Environment Day when it was celebrated. So basically, first is जागरूकता को फैलाना, awareness को फैलाना. Second is the climate change. जो भी हमारा जैसे हम कहते हैं कोरोना को हमारे मोदी जी आके बताते हैं कि it's a वैश्विक महामारी, right? It's a pandemic. So वैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापमान जो हमारा ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं. we'll talk about it later during the discussions कि उसके क्या वो हैं. फिर हमारा जो मैरीन पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए बायोडाइवर्सिटी जो है कि उसको कैसे इसकी काफी महत्व इसका बढ़ जाता है. जो सागर में हम कहें कि पानी जो खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है. फिर जो ह्यूमंस की वजह से ओवर पोल्यूशन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारे दैट रिसोर्सेज आर लेस बट वी आर बिकॉज ओवर पॉपुलेशन. अब एक एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन का हम देखें कोरोना में कहाँ इफेक्ट ज्यादा हो रहा है आप देखिए दिल्ली बॉम्बे में, बिकॉज द पर स्क्वायर किलोमीटर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज टू हाई. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं कर सकते. एक रूम में 8x10 के रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग हुआ. सो दैट्स अनदर थिंग. फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अभी तो काफी I would say it's a very sensitive issue in India right now after the Kerala incident of that elephant, like female elephant, जिसको किसी ने बॉम्ब खिला के मार दिया. So it's pretty. That's why I said everything is like I mentioned the line humanity. Yeah, so that's humanity like very होना inhuman, बहुत जरूरी insensitive. है.
Exactly. Yeah. So that is another, I would say, significance of having biodiversity as the theme for this year. And unfortunately, it's not happening. It's virtually happening everywhere. And then very important is sustainable consumption. कि सस्टेनेबल कंजम्पशन का एक क्या हुआ कि हम एक स्थायी खपत के लिए कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हैं. सस्टेनेबल का मतलब ये हुआ कि अभी इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हम कहते हैं कि हमारी जो इसकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो गई. आई वाज सीइंग अ रिपोर्ट यस्टरडे ओनली इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे इस बार बहुत ही अच्छी पैदावार हुई है गेहूं की. बट इशू क्या है, वहां पे बारिश आ गई बिकॉज ऑफ दिस सुपर साइक्लोन. बॉम्बे से वो मूव करता हुआ निसर्ग ने हिट कर दिया, साइड से निकल रहा है डिप्रेशन क्रिएट करके मध्य प्रदेश से. सो उसकी वजह से कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास नहीं है. 1.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई है. 50,000 जो है आज तक मैक्सिमम हुई थी मध्य प्रदेश में. इस बार उसका डबल से भी 2.5 टाइम्स हुआ, और उसको रखने के लिए जगह स्टोरेज नहीं है. तो सस्टेनेबल का मतलब ये हो कि हम एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए उस चीज को कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 50,000 का एवरेज आगे होती है, कभी 50,000, कभी 70,000 मीट्रिक टन, तो वी कुड हैव प्रिपेयर्ड आवर शेड स्टोरेज कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दैट, थोड़ा बढ़ा के, कि कल को ज्यादा भी हो सकती है. सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हम सस्टेन करें एक चीज को, खराब ना हो. अब क्या हुआ है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि शी इज आल्सो सिटिंग इन एमपी, आई थिंक, इन द रेंज. सो गेहूं खराब हो गया, Exactly. किसकी मेहनत है, कितना चीज हुई. तो अगर वो सस्टेनेबल नहीं रहा ना, अगले साल अगर वो नहीं अच्छी फसल हो, इस साल 50,000 का 2.5 गुना हो गया एक स्टेट के अंदर, तो नेक्स्ट ईयर वो यूज होता है ना. सो सस्टेन करना उस चीज को, दैट्स another significance of this biodiversity. So that's my view. रियली द बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि सर ने बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एंड इट इज द फाउंडेशन दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन लैंड, बिलो वाटर. इट अफेक्ट्स every aspects of human health, providing clean air, water, food, scientific understanding, medicine services, medicine sources, climate change, जो कि सर ने अभी बताया, and the changing in Yeah, any of these series. मतलब इसमें से एक भी चीज का चेंज होना, डेफिनेटली इस पूरा जो चेन है, ये पूरी चेन गड़बड़ होगी, क्योंकि ये सबसे that's right. इम्पोर्टेंट चीज कहलाती है. ये सब इंटरकनेक्टेड है. हम जैसे कि जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों ही इंटरकनेक्टेड है. It's a इसीलिए subset of biodiversity, I would say. एग्जैक्टली. My next question is that, so Yeah. what alternatives option are there for protecting our biodiversity? बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए आई वुड से दैट यूनाइटेड नेशंस व्हिच इज kind of I would say the institution who controls or who directs, advises various countries and people and society for things that are related to uh, our day-to-day life, the future, the climate change and everything. So the United Nations has I would say I'll first take a minute on the United Nations. They have their Sustainable Development Goals 2030, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके सतत विकास लक्ष्य हिंदी में अगर बोला जाए तो. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2030 में, उसमें जैसे पावर्टी है, उसके अंदर है कि लाइक रिमूव पावर्टी, नोबडी शुड स्लीप बाय 2030, नोबडी शुड बी हंग्री ऑन दिस प्लैनेट. Like nobody includes the animals also, include the people also. बट So यहाँ तो उसमें कुछ, कंडीशन कुछ और ही दिख हाँ, रही है आज की बिल्कुल डेट में. और ही अगर है. हम मतलब that's आज something like you have to set targets. They had sustainable development goal 2024, 22, 25, 2030 कर दिया. तो उसमें क्लीन वाटर देना, वाटर इज अ बिग इशू. आप आगे देखते जाइए कि कितना झगड़ा होने वाला है. अभी बहुत जगह पे राजस्थान में दिखा रहे थे, आई वाज सीइंग अ रिपोर्ट on TV. Rajasthan, like people are walking like 4 or 5 kilometers to fetch water. एग्जैक्टली. So it's just going to be so. United Nations ने biodiversity के लिए और इसके लिए उन्होंने कुछ जो goals हैं out of the 17 sustainable development goals they have, and Brazil also they also support sustainable development goals. Yeah, That's a even pretty even the personally, yeah, Brazil society, we have our we have also yeah, set the goals, and we are definitely we are following the United Nations sustainable goal.
and we are Yeah, trying to fulfill our best as per my matlab, best to best possibility. I'm giving my best for that. And Dr. Vishwas, I have one question that yeah, what you have suggest to government for implementing policies for safe environment. yeah. Have you work on that sector also? Because you, I'll tell you, like, from starting to, let's like the United Nations, whatever it does is basically it goes to the governments of the country. So I work with United Nations for various projects, work with various NGOs. So United Nations के कुछ जो goal है 17 में से, like Professor Priti, as an NGO also, as a, I would say, pharmaceutical person also and a legend also, she has probably picked a few of those 17 goals. But United Nations जो इससे linked है हमारे, वो उन्होंने पिक किया है हमारे लिए। एक क्लाइमेट चेंज को पिक किया उन्होंने कि इट्स गोइंग टू बी, जो भी ये हम कह रहे हैं ना, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पानी में लाइफ जो है रहने वाले लोगों की, लाइफ ऑन द अर्थ जो रहने वाले लोगों की, चीप एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। अब जहाँ पे बात है आपकी कि हम इसकी बात करें कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसका, इसके लिए क्या क्या क्यों इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के भी, इंडिया में भी। बायोडाइवर्सिटी में देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू बूस्ट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ फॉर समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, इकोसिस्टम जैसे हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल होंडा कार्स जो है वो एक कार बना रही है, तो सप्लाई चेन में कोई डोर बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, सप्लाई चेन में कस्टमर भी आ गया, सर्विस सेंटर्स भी आ गए। सो ऐसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बूस्ट करता है इकोसिस्टम, जहाँ पे हम हर स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती है, कितनी छोटी हो या बड़ी हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो उस पे हम जो है, इसका बेनिफिट ये है कि जब हम लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज पे काम करेंगे, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट अगर हम लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अब आपने सुना था पीछे ब्रिंजल के ऊपर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट बैठी हैं, ब्रिंजल के ऊपर कितनी रिसर्च हुई थी, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के ऊपर आता है। देन अगर हम ज्यादा डाइवर्सिटी करें, ग्रेटर स्पीशीज की डाइवर्सिटी हो, तो उसमें जो है नेचुरल सस्टेनेबिलिटी जो है ऑल लाइफ फॉर्म्स की इंश्योर होती है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आई डोंट नो, देयर मस्ट बी पीपल हु कम फ्रॉम द फार्मिंग बैकग्राउंड और मस्ट हैव हर्ड, आई डोंट नो टुडे जनरेशन, बट पहले जो गाय होती थी या भैंस होती थी, हम लोग दूध लेते थे, राइट, वो एक पर्टिकुलर लीटर होता था ना, कितने लीटर देती थी। अब आप 1970 के कोई काऊ को उठाओ और आज की काऊ को उठाओ, देखो उसमें 4 टाइम्स क्यों देती है वो दूध। सो उसमें but उसकी, that's not beneficial because I heard that. दैट्स नॉट बेनिफिशियल, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट Because आई एम कमिंग टू द I'm just स्पीशीज। I'm just जर्सी telling गाय the जो बनाया है, example. They are ये just या hybrid. There are ये so देयर many, हाइब्रिड, so many, या so many. They सो have मैनी, these या drawbacks. Like I यस, heard, I saw a movie after 5 years back. I saw that movie for the athletes. So ओके, वो जो मिल्क होता था वो दिया जाता था, लेकिन वो क्या मतलब उसमें उन्हें स्टेरॉइड्स दिए जाते थे। स्टेरॉइड्स दिया था, दैट्स राइट। हाँ, अभी भी लेकिन आप देखो दिवाली के ऊपर लेकिन पकड़े उसका जाते हैं ना लोग, उसका फेथ क्या था? आखिरी में उसका फेथ यही हुआ कि कि जो वो दैट विल एथलीट्स, इफेक्ट, हाँ, वो उन लोगों को उस मैच में वो भले ही जीत जाए लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग हार जाते थे। उन्हें दैट्स राइट। अलग कर दिया जाता था क्योंकि वो पैरालाइज हो गए या कुछ उनकी बॉडी में कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई। वो वो इसी के लिए है कि अब आप बात कर रहे हैं इंडिया में कोविड-19 में कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो वी आर बैक टू बेसिक्स, राइट। द जी टॉपिक आल्सो हैज बैक टू बेसिक्स। तो बैक टू बेसिक्स में क्या है, आयुर्वेदा, जिसको लोग हम भी नहीं पूछते थे सिटीज में काफी साल से। नाउ आयुर्वेदा, योगा फॉर लास्ट, आई वुड से लास्ट 10 years हैज बिकम लाइक टॉक। एंड अब आयुर्वेदा ने आयुष्मान, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान, हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, अब लोग सब उसके पीछे भागने शुरू हो गए इम्यून सिस्टम के लिए। अब हम वही बात कर रहे हैं कि आप गर्म पानी पीजिए, आप अदरक लीजिए, आप हल्दी डाल के दूध में पीजिए, आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट व्हाट आई वाज रेफरिंग टू वाज दैट जितनी स्पीशीज इन द सेंस कि हम जितनी ज्यादा वेराइटी, अभी आयुष्मान जो था, दिस वाज अ अनटच्ड टॉपिक फॉर सो मेनी इयर्स। अब देखो सब लोग बात कर रहे हैं, अब इतने ऑर्डर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, माय पर्सनल भाभी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब से, शी इज इन गवर्नमेंट जॉब, बट वो लोग भी एलोपैथिक मेडिसिन लिखते थे इन हिमाचल में।
कोई कहते खाता ही नहीं आयुर्वेदिक। अब उल्टा हो गया है, अब लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं कंपनीज उसके ऊपर, पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन कि पीपल हु वर इनटू एलोपैथिक मेडिकल मेडिसिन नाउ दे हैव कम टू दिस with the new products called immune system boosters. Immune system booster. So Patanjali देखो is a very good example. I would say it's a very good business example. इतना रिसेशन हो रहा है, people are losing job, there is nothing. देखो पतंजलि it's a very good example of back to basics. क्योंकि पतंजलि योगा पे बैठे थे, योगा से उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लॉन्च करनी शुरू की। अब घी तो हम खाते थे ना अमूल का, बट आज हमारा शायद ट्रस्ट काफी लोगों का पतंजलि के घी पे ज्यादा है कि प्योर है। So what you said कि वो ऐसा हो रहा था, you are right from that perspective. So coming back to the government has come out with a lot of legislations. Now this female elephant case has happened in Kerala, right? So if you look at now the minister, there's politics going on. Like you know how many people are really interested into wildlife at all. It is very clear from the fact that there were 10 lakh elephants in India like 10 years ago, and now it is 27,000. 27,000. See, is the So from condition. 10 lakh to 27,000, and now they are tweeting to each other. They're on the you can see on the TV the debates happening कि while वो female elephant को ये ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, it's a very inhuman act. So what I'm saying, government now is saying that if we get the criminals, we'll like give them a like severe punishment. आपको पता punishment कितनी है? अगर ऐसा कोई केस के लिए पहली बात आईपीसी में कोई लॉ ही नहीं है आज की डेट में, और इसमें पनिशमेंट जो है वो 1 साल की पनिशमेंट है और 50,000 रुपीज फाइन। This is very serious issue, but Yeah. people are not taking it. People are taking as a taken branch. It's like that. Yeah. Because and That's this what is I'm the time we have to, the message. The nature has given a message. It's wake up alarm. Like yeah, it's a wake up alarm. So what I'm saying that there is no legislation. So government is now these are all I would say wake up alarms. Now NDRF was not there, right? तो हमने कभी सुना था बचपन में NDRF है. Now these super cyclones that have hit Maharashtra, West Bengal, Odisha, Gujarat to some extent. तो अब NDRF जो है वहाँ पे भी जो है, अब NDRF का एक्चुअल में if you compare, all due respect to our people who have been working in NDRF in India, मतलब क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो। नेशनल डिजास्टर मतलब कि आपका कोई अर्थक्वेक आ गया, बेसिकली अर्थक्वेक्स के लिए शुरू हुआ था इंडिया में, और इसके लिए जो हमारे बाढ़ आ जाती है हर साल के, तो बेसिकली उसके लिए शुरू हुआ था, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। ये जो साइक्लोन आए हैं आपको ऐसा लग रहा होगा इनके पास ट्री कटर्स थे, बिकॉज दे हैव परचेज्ड इट व्हेन 2002 अर्थक्वेक हैज 2001 अर्थक्वेक हैज हैपेंड इन गुजरात, तब के उनके पास ट्री कटर है, तो 19 साल में परचेज नहीं हुए हैं ट्री कटर्स। सो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। सो नाउ व्हाट यू सेड इट्स अलार्म रेस। सो गवर्नमेंट हैज ऑन द बायोडाइवर्सिटी आई वुड से कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए काफी ज्यादा आई वुड से देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर taking place at United Nations level and government levels also, state government, central government, nation government, national governments. So a lot of things are happening at that level कि आप sustainable living के लिए sustainable education, sustainable food procure कीजिए। sustainable food में वही आ गया कि आपका जो आपने एग्जांपल दिया था दूध वाला कि स्टेरॉइड्स डाल के दिया जा रहा था, और it was not the pure milk and all. So that's not sustainable. Sustainable is something which will not affect your body also and will preserve the nature. So that's something that is happening. So काफी बहुत सारी restrictions और बहुत सारे चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशन ने इम्पोज की हैं कंट्रीज के ऊपर, and on paper it look better, but I think it's lot of thing depend on us, that how we take responsibility as humans, like you said, humanity, right? So humanity is not something that is government of India or a government of Delhi, Madhya Pradesh or Maharashtra or United Nations responsibility. Humanity is something which is we, I, me, that comes from there. So that has to come from there. Exactly. इसीलिए यही एक मैसेज है, अनुकूल बने या नष्ट हो जाए। आप या परफॉर्म और पेरिश, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, परफॉर्म और पेरिश, पी का फॉर्मूला। यस यस, अडॉप्ट और पेरिश, एग्जैक्टली। हाँ, सो मतलब ये तो अब एक आर या पार की लड़ाई की तरह है कि भाई आप या तो फिर अडॉप्ट करें चीजों के साथ, या तो फिर आप अपने आप को
डिस्ट्रक्ट कर ले. सबसे डिफिकल्ट चीज जो है वर्ल्ड वर्ल्ड में ह्यूमन जो रेजिस्ट करता है, दैट इज चेंज, Yes, including us. Everybody resists change. So it's something like it's forced on us. Up yesterday, I went out of home after like a few weeks, and I could see that people are wearing masks. And I would say that this all Swachh Bharat Abhiyan and all, ठीक है, जितना भी पैसा किसने खाया, कहाँ गया, मुझे नहीं पता, सड़कों पे तो नजर नहीं आता. But see, due to this, whatever nature has imposed on us, or China has imposed on us, whoever, see, like people sitting in the train, the what we call Pravasi Mazdoor or the migrant labor, like they also know what is sanitizer. They are also like cleaning hand with sanitizer. उनके भी वो ट्रेन से निकल रहे हैं बाहर तो उनके बैग पे सैनिटाइजर का स्प्रे हो रहा है. तो आप देखिए कि एक चीज हमारे ऊपर इम्पोज हुई है, इट्स एन अलार्म ऑल्सो दैट भैया आप सुधर जाइए, अब आप जो exactly, है अपनी exactly. हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए. सो इट्स समथिंग, एवरीथिंग कम्स विद I would say positive and negative. So corona is also not a no, I would not say it's not a negative thing. It's something. It's a alarm for us to wake up. भैया Exactly, कल को exactly. And even और yeah, say, या या even in this lockdown, we see various industry closed due to the lockdown effect, and various surveys say that now the river water is directly drinkable. And so, why industry does not follow the proper drainage system? that's This true. is the major problem we are like we are facing now. We can see the condition river water, it's like direct drinkable. तो Yes. हमारी इंडस्ट्रीज जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये सिस्टम क्यों फॉलो नहीं करते? Yeah, that's true. That's what I'm saying. That now let's talk about like to quote a very good point. Now this Gange Water Clinic, right? गंगा के पानी की जो सफाई के ऊपर 2014 में a separate ministry is union ministry was there. Uma Bharti was the minister that time. No, I Gangwar or somebody said. So आप देखो कि अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि कहाँ से आ रहा है पोल्यूशन. हम लोगों ने घर पे हवन कराया, हिंदू स्पेशली हम लोग हवन कराते हैं, पंडित जी कहते हैं हवन सामग्री को पानी में बहा देना. हम भी बड़ा कन्वीनियंटली, चलो कोई नोएडा जा रहा है दिल्ली में तो चलो जमुना जी में फेंक दें. ठीक है, इंडस्ट्री वेस्ट कहाँ जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है. अब लॉकडाउन का इफेक्ट देखा आपने, इम्पोज्ड ऑन अस. सी द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज इम्प्रूव्ड which government couldn't do for so many years. That's what I said, that it is not something that we can uh, say that it's a government responsibility, or it's a United Nations responsibility, or something organization responsibility. It has to start from us only. That's the only way out. Governments ने भी बना दिया है कि चलो कुछ नया दिखाना है, बट गंगा वाटर क्लीनिंग क्यों नहीं हुआ अभी? सिर्फ 2 महीने के अंदर गंगा कैसे 36% क्लीन हो गई. बिल्कुल देखो घाट साफ पड़े हैं बिल्कुल. आप अब्रॉड में देखो बीचेस में जो है आपका जो पानी के अंदर मछलियां हैं और ये सब जो है क्लियरली विजिबल टू यू. सो क्लीन वाटर. यमुना का पानी बिल्कुल साफ हो गया दिल्ली में, बिल्कुल काली यमुना देखी आज तक. So that's what I'm saying, that what you said is pretty right. This is something that government now government will impose, should impose, I would say. But what I'm saying that as a person, as a individual, we also have responsibility. कि अगर हम देख रहे हैं, अब हमें समझ आ गया ना थोड़ा, तो कुछ तो कोरोना ने सिखाई दिया हमें. अगर हमें लग रहा है कि कोई थूक रहा है कहीं पे, तो वी शुड इमीडिएटली गो एंड स्टॉप हिम. आज तक नहीं रुकते ना. हम भी ऑफिस में जॉब्स करते थे, मल्टीटास्क में देखा होगा वो जो पेंट करते हैं मजदूर, वो भी अपना वो गुटखा पान खाया और थूक थूक गया और दीवारें भरी होती हैं जगह जगह. तो वो जो है that has to come from us also, that we need to contribute, right? That's what I would say. For biodiversity, that's something. It's a like corona is a pandemic. We call it's a वैश्विक बीमारी. So this is something वैश्विक विविधता. So Exactly. that's my take. Dr. Vishwas, you Yeah. have been awarded with World Peace Awards, and you are working in that peace, and you are working on that track, some policies making and with the governments. Can you elaborate any of the policies which effectively works during this condition, and So for the environmental? Now the issue is environmental, the yeah. climate change, and the main focus. I just want some uh, you know
Okay. because No, peace, whatever the peace and humanity, everything is related. everything is related. This is Everything is all hand in hand. exactly. So This is please, all hand I in hand. just want I our would say viewers that also. government has, if you see the whatever 20 lakh crore package has been given to various sectors or will be given, I don't, whatever way it is. So if you see the breakdown, slice it down also, you will see that there is a lot of changes that are happening in terms of from the environment side also. Environment side on the like pure water, clean water, and that's one of the major changes that has happened because there was no rule that was framed at all in the country that will ensure that you need to like it's something like a fundamental right having pure clean water. So that is something which is being I would say at a very high level. Now they're saying that okay, let's do it at a pilot project. So the money has been allocated. ठीक है हम क्लीन वाटर देने की कोशिश करते हैं लोग गंदा पानी पी रहे हैं गर्मी में राजस्थान में 4-4 किलोमीटर जा रहे हैं तो एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट विद दैट लेट्स हैव अ हैंड पंप इन एवरी विलेज नेक्स्ट 2 years. सो वहाँ पे आई वुड से फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप वो एंड पे कितना पहुंच से पता नहीं है. अब बहुत सारे लोगों ने आज बाई चांस वर्चुअल हो गया है सब आज की डेट में but last to last year in MP, I would sorry to take the example of MP again because that's I remember often. तो आज के दिन लोग बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं ठीक है. Exactly. अब एमपी में जो फॉरेस्ट स्कैम जिसको हम बोलते हैं कितना स्कैम तो सब जगह है गवर्नमेंट कोई भी डजंट मैटर बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब उसके ऊपर जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैट जो है दैट इज कमिंग अप विद न्यू दैट इज प्रपोज्ड न्यू लॉ टू द गवर्नमेंट कि आपने इतने प्लांट्स लगाए हैं प्लांटेशंस की हैं तो उसको जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट डे है अगर आप एनवायरनमेंट डे को ही चुन रहे हैं मतलब आफ्टर 12 months ऑफ इट जैसे हम करते हैं ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ठीक है या गवर्नमेंट के सिस्टम अपडेट हो जाता है कि ये वोटर अब 41 years का था नेक्स्ट ईयर अब ये 42 का हो गया तो ऐसे पेड़ को भी वो कहते हैं कि नंबर दो उसका भी एक आईडी लगाया जाए कि ऐसा ना हो कि वहां पे 10 करोड़ प्लांट्स लगे थे और एक साल के अंदर वो प्लांट कितने रह गए यू विल लाफ फॉर इट 33,000. एग्जैक्टली कोई भी चीज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना चाहिए और हाँ ऑन तो वो पेपर नहीं उसके होना ऊपर चाहिए. रेगुलेशन के लिए कि जो कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अब गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है अब लेजिस्लेशन कब आता है बट दैट्स समथिंग यू आस्क मी कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में चल रही है दैट्स आल्सो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसको भी छोड़िए आई सेड दैट आई बिलीव दैट वी as an individual as a society as a person we can bring the change if we decide to do that. ठीक है अब कुछ चीजें एनफोर्स की जाइए हम लॉकडाउन एनफोर्स हुआ ना पहले तो सबने खुशी हो कि खुशी खुशी जनता कर्फ्यू पे ताली बजा दी थाली बजा दी घंटी बजा दी उसके बाद परेशान हो गए लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए कि मैं तो लॉकडाउन हो गया परेशान हो गए ठीक है बट व्हाट आई एम सेइंग कि आज हम सिर्फ एक एक प्लांट ही लगा लें एक प्लांट भी नहीं लगा सकते तो वो भी छोड़ो हम आज से ये कर लें कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर कलाम उत्तराखंड गए थे आई वर्क विद हिम फॉर लाइक 14 years in personal capacity so he was in Uttarakhand that time Uttar Pradesh तो चिपको आंदोलन चल रहा था एंड ही वाज अ चीफ गेस्ट इन सम थिंग सो उसके बाद वो गए तो उन्होंने जो है ना बहुगुना साहब ने चलाया था वो पेड़ों के साथ चिपक जाते थे पेड़ नहीं काटने देते थे उनका नाम तो उस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था चिपको आंदोलन सो पेड़ के साथ वो चिपक जाते थे बहुगुना जी तो काफी उसने काफी पेड़ बचे उसकी वजह से तो डॉक्टर कलाम देखो ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल व्हिच वी कैन अडॉप्ट सो व्हेन ही वेंट ऑन द स्टेज ही सेड दैट आई नेवर न्यू कि अगर आप गेहूं खाएं मींस आप आटा की रोटी खाएं और चावल खाएं तो उसमें क्या फर्क था आज तक ही सेड लाइक आई हैव लिव्ड माय लाइफ ईटिंग राइस आई एम अ साउथ इंडियन so I need rice both times lunch also dinner also so I need rice both times but today I got to know and when Bahuguna ji was speaking that गेहूं लगाने में मीन्स अगर रोटी खाना पड़े और चावल उगाने में राइस के लिए जो पानी है वो 3 गुना ज्यादा लगता है पानी अगर यू हैव टू ग्रो राइस सो डिमांड ज्यादा है तो कहते हैं आई एम अ साउथ इंडियन आई कांट लीव द राइस बट टुडे आई टेक अ प्लेज दैट he said I've never eaten roti in my life till like it was when he was president of India. So he said today I'm taking a pledge that from today I will take 2 chapatis in the night
with some rice. So that's his contribution. That slowly if people adopt it, so सबने थोड़ा थोड़ा चावल कम किया तो जरूरत नहीं ना, you can उसकी जगह आप ऐसी चीजें लगा सकते हो. That's what I said, variety of species और crops, ये that is the example. So वही मैं कह रहा हूँ कि आज हम इसी चीज को डिसाइड कर लें कि हम शेव करते हुए, ब्रश करते हुए पानी नहीं खोलेंगे, खोल के नहीं रखेंगे वॉश बेसिन में. छोटा सा एक एग्जांपल अपने ऊपर ले लो, कुछ भी ले लें, एक पौधा अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट मतलब कि लगा के उसका ध्यान रखेंगे भैया वो पेड़ बन रहा है. वो नहीं है तो किसी को जगह की सफाई की जिम्मेदारी ले लें. So I would say these are the small things. Government, I told you the few things that are in process, but we don't know when it become real law. So today, really, the unfortunately doesn't exist much. But yes, out of this 20 lakh crore, whatever is announced, a lot of slices that has been given to the environment on the water side, on the wildlife side. Exactly. I just my question is that, as we know, Yeah. our groundwater is groundwater is continuously decreasing, as you Yes. just told. Yeah. Maybe So drinking water will be cause of world wars. So yeah, what is alternate for groundwater? groundwater में देखिए अब आप now the government has announced lot of subsidies that of groundwater harvesting. अब काफी जगह तो laws बन गए हैं. There are lot of laws in Maharashtra also, in like NCR also, कि आप कोई भी नई बिल्डिंग बना रहे हैं, you have to have a rain harvesting plant in that society. So that's something that is a change. If you see the other example is the clean energy, the solar इलेक्ट्रिक पावर. तो अब सोलर पावर आप देखिए कितना ज्यादा सब्सिडी है. ठीक है, जिनके पास घर है दिल्ली में तो चलो फ्लैट्स हैं, बट स्टिल पीपल कैन थिंक ऑफ. बट जिनके पास घर है, आप देखिए, कैलकुलेट इट योरसेल्फ कि आपको जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है. सो दैट्स आई वुड से थिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस. और उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट देखिए, नंबर वन तो कोई इट्स अ क्लीन एनर्जी. सेकंड, कॉस्ट है ही नहीं उसके अंदर. मतलब इफ यू आर पेइंग 4 रुपी पर यूनिट, इट्स लाइक 10 पैसा पर यूनिट. So and it is like कहते हैं ना, it's in your hand, कुछ like 24/7 एनर्जी मिलती है आपको. So वैसे ही आपका जो था वाटर रिटेंशन के लिए ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया. अब आप देखिए, इफ यू सी द रिपोर्ट, दिल्ली में वाटर लेवल जो था that has come up by 0.7 meter over last 7 years now, which was dipping every year because of this rain harvesting that government has imposed when the metro work was going on in Delhi. So every metro station has a rain harvesting system, and it's a pretty good thing you brought it. So ये चीजें एग्जिस्ट अभी कर रही हैं. रेन हार्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारा सब्सिडी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से. आपको क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारा मिलता है. फिर जितनी कंपनीज अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स is the next future. Abhi, I don't know how many of you have seen in US the electric plane has taken the flight, the first electric plane has taken the flight, which has zero carbon dioxide discharge. So it's clean. So what I'm saying is कि ये इनको कितनी सब्सिडी दी जा रही है. There's already laws. People, companies who are working on electric vehicles, see the subsidy, kind of subsidies they get. Like government is, for every car, government is paying 1.5 lakh rupees to the supplier, to the manufacturer. To on every vehicle sold, 1.5 lakh is not given by us, but government is paying that. So that exists. Okay. The world is certainly quite a place in these days of the lockdown due to COVID-19 pandemic. With care of the street, seismologist has found the earthquakes in Delhi. Just Dr. Vishwas has told us these are all due to the human. These are all due to us. Nobody has come from outside. There 11 earthquakes happened in Delhi in last 2 months. Maybe the intensity was very low. That's why I'm asking, what is the role of human? How we can correlate human over population and pollution? Human population pollution. Yeah, that's what I said, that human population. Oh, I used the word at the beginning when we talked about that. What are the significance of biodiversity?
सो उसमें एक मैंने कंसिडर आपको बताया था दैट ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन में अभी आई वुड से सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज जैसे दिल्ली बॉम्बे का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। तो जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, धारावी आप ले लीजिए, वहाँ पे कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, राइट। तो धारावी में अगर आप उसकी बात कीजिए तो वहाँ पे कॉमन टॉयलेट्स हैं। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन कहाँ से गई है? वो स्टेट से गई है ना, जो जिसको हम बात करते हैं आजकल माइग्रेंट लेबर्स की कहानियां देखते हैं रोज। वी ऑल्सो फील हेल्पलेस कि हम क्या करें, ये करें। बट नाउ दिस इज एन अलार्म दैट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यूपी में, आगरा में, सॉरी नॉट यूपी, भोपाल में, भोपाल में दे हैव देयर आर 180 दिस labor, migrant labor has come back from Punjab. They were all tailors in Punjab. ठीक है, तो 180 लोग आए तो उन्होंने स्किल मैपिंग शुरू किया, जो यूपी में कर रहे हैं। तो उन्होंने स्किल मैपिंग शुरू किया था, और भोपाल में कोई कंपनी थी जिनको 250 मजदूर वहां से छोड़ के चले गए, जो टेलर्स थे। कहाँ गए थे वो वहां से यूपी चले गए वापस। तो ये 180 लोगों को वहां जॉब लग गया। सो ओवर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन का आप देखिए ना कितनी सिग्निफिकेंस है साथ में। वहां पे बॉम्बे में वही लोग जाके या कहीं और जाके वो एक 8 बाय 10 के रूम में 12-12 और लोग रह रहे हैं। पॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज टू हाई। ठीक है, तो उनका जो भी आप कहते हैं मल मूत्र त्याग करेंगे, कुछ भी करेंगे, खाना खाएंगे, हर तरफ गंदगी, तो होना ही होना है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बहुत ही पेचीदा, इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल question, and it has direct correlate obviously because whatever has happened, I have shared one video on my LinkedIn and Facebook also, I sent you also yesterday in Norway, like 3-4 days ago in Norway. The whole 100 houses have submerged in the sea. It's a very very I don't know if you can share with them later on Facebook, but it's a very very, I would say, alarming thing to see. पूरी का पूरा पानी के अंदर जा रहा है। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज हमने जो है वी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन हमने धीरे धीरे लैंड एक्विजिशन करना शुरू कर दिया, सी को किया। चलो जी, उसको बॉम्बे में भी तो ये करते हैं, रेक्लेमेशन करते हैं लैंड का, रेक्लेमेशन करके लैंड बना दिया, पानी को और शिफ्ट कर दिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? क्लाइमेट कंट्रोल की बात, क्लाइमेट चेंज की बात करें, द टेम्परेचर ऑफ द सी इज गोइंग हाई, राइट। Exactly. तो My उसकी वजह next से question तो is that या we सो व्हाट एम या what about like global warming we are facing now? So somehow ग्लोबल वार्मिंग वी आर फेसिंग, देयर आर 3-4 मेजर रीजन। आप द देखिए मोस्ट ओजोन लेयर देखिए कितना डिप्लीट हो गया है, और लेकिन ओजोन, यस, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड का जो जितना भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्चार्ज जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? उसके रीजन जो है वो बहुत सारे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। द मेजर रीजन इज पोल्यूशन। पोल्यूशन कौन सा है? जो हमारा एयर पोल्यूशन है। वो कहाँ से आ रहा है एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन आ रहा है इंडस्ट्री से, एयर पोल्यूशन आ रहा है हमारा ये व्हीकल पोल्यूशन जितना है हमारा, नॉइस ठीक ये है, सब। ये सारे कर, ठीक है। फिर हमारा एयर जो ट्रैफिक है, एरोप्लेन, ये 3 चीजें मेजर कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे जो सीओ, हम कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कह रहे हैं कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो दैट्स द मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एंड सेकंड इज दैट जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्री का आउटपुट डिस्चार्ज हो रहा है रिवर्स के अंदर, रिवर से वो सी में जा रहा है, ठीक है। और आप देखिए ये ग्लेशियर्स एंड ऑल, they are melting like anything. See the changes that has happened. कहाँ रेंज एग्जैक्टली होती थी? नाउ नाउ बॉम्बे में जो कह रहे हैं सुपर साइक्लोन आया था आफ्टर 130, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ लास्ट सुपर साइक्लोन फॉर इंफॉर्मेशन, दैट 1890 में कुछ रिकॉर्ड नहीं है मेट डिपार्टमेंट के पास। इट्स समथिंग दे हर्ड। सो इन माय वे इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड गॉड फॉरबिड के इसने स्लो डाउन कर दिया, नहीं तो और नुकसान होगा। बंगाल में फर्स्ट सुपर साइक्लोन। So these are all alarms. These are all related to population, pollution. तो population भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि population के लिए definitely we should be very, अब हर religion का अपना हुआ है, but what I'm saying कि अगर हम उसका spread एक तरह से ठीक कर पाए। अब यूपी देखिए 33 करोड़ पॉपुलेशन यूपी का, ठीक है। आप उत्तराखंड में जाइए तो आप देख रहे होंगे आजकल चाइना का वो जो भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि वहां पे घर ही नहीं है, कितने कितने किलोमीटर में आपको पॉपुलेशन कितनी है,
15 किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन 100 पीपल, ठीक है, तो मतलब वहाँ जगह थी तो वहाँ पे लोग रह सकते थे ना, या वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, लोग छोड़ छोड़ के चले गए सब बाहर जी काम करने। सो एवरीथिंग वहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, सब कुछ क्लीन एयर। आई डोंट नो इफ यू बीन टू हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और उत्तराखंड, when we go from Delhi, when you hear the headlines of pollution, 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 we can actually feel that हमारे आँख नहीं जल रहा है, हमारा नाक नहीं जल रहा है, जैसे हम एंटर करते हैं उस सिटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर। तो इट्स बायोडाइवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी तो मैं क्रिटिकल। चाहूंगी ये चीज हम इस प्लेटफॉर्म में आज कवर करें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी थीम ही इस बार जो यूनाइटेड नेशन और ये जो थीम रखी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए रखी है, क्योंकि हम इसमें देखो मैंने आपको बताया था, इसमें 5-6 चीजें थी बायोडाइवर्सिटी में। इफ यू सी द व्हाई दिस थीम वाज केप्ट दिस ईयर, एक तो मैंने बताया कि अवेयरनेस रेज करना, ठीक है, तो एग्जैक्टली अवेयरनेस तो आई थिंक एवरी ईयर वी डू। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, which now formally on a World Environment Day the topic has been brought in. So that was the second reason to have biodiversity as the main topic of this year's World Environment Day. The third was marine pollution, जो हमारा पानी में pollution होता है, which we talked about. Took example of Ganga, we took example of industry discharging this. Then the human overpopulation की बात की हमने कि human overpopulation का क्या disadvantage, advantage. So we know it's a disadvantage only. And wildlife protection is the another thing that is the reason that this topic has been kept. So wildlife protection में I would say India में जो एक I would say कि एक rule बना, एक regulation बना, या एक जो जागरूकता आई है, everything start I took the first is awareness, which is like जागरूकता. Why I kept it at number one, because everything started from there. अब टाइगर रिजर्व चला ना इंडिया में कि टाइगर बचाओ, सेव द टाइगर कैंपेन एनडीटीवी ने भी चलाया। तो आप देखोगे एनडी के कितने टाइगर्स बढ़े हैं इंडिया में, देखो इट्स नंबर इज इंक्रीजिंग। एलिफेंट्स की कोई बात नहीं कर रहा था, नाउ दिस एलिफेंट, दुखद हादसा जो हुआ, मतलब मैं तो खुद पूरी तरह वही से कह रहा हूँ, एलिफेंट 10 लाख से 27,000 आ गए हाँ, पिछले कुछ सालों में। बहुत ज्यादा इंडिया ये में 10 सोचने लाख की से, बात है। हाँ कितना बड़ा, इट्स फूड फॉर थॉट। आई वाज लाइक शॉक टू सी द एजुकेशन नंबर्स। यहाँ ये चीज प्रूव कर दिया, एजुकेशन इज नॉट अ मैटर। वहाँ 100% लिटरेसी रेट है, और आप देखिए वहाँ यस, एजुकेशन कहीं से कहीं तक नहीं आया, यहाँ पे यहाँ ह्यूमैनिटी आई। education or literacy is not directly proportional to humanity. एग्जैक्टली Humanity has nothing to do with literacy. Unfortunately, this has proved, this case has proved very much. Because Kerala, like proudly, when people say कि India में where is the literacy rate is very high, तो फटाफट केरला का नाम आता है. They're very proud. We are also very proud कि केरला में पढ़े लिखे लोग हैं. But what you said is yes, that's not humanity, because that's what I said. Literacy is not directly proportional to humanity. So wildlife protection में ये बहुत अच्छा टॉपिक है. आई थिंक वी शुड रेज दिस एट दिस प्लेटफॉर्म आल्सो, एंड एट आवर लेवल आल्सो, एंड व्हाटएवर कैपेसिटी. क्योंकि जैसे अब ये मुझे ऐसा लगा कि ये भी ना शायद प्लान्ड हुआ, जो ये फीमेल एलिफेंट, इट्स आल्सो सिग्नल. क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली कि 10 लाख से हम लोग 27,000 पे आ गए हैं सिर्फ इंडिया में. Only 27,000 even I elephants. was shocked when I हाँ, figure out that या thing. मैं आई वाज शॉक. सो आप देखो कि टाइगर्स हमारे बड़े ना, that crackers and they are used to with that, कि भाई हमें अपनी फसल बचानी है तो हम वो चीज बॉम्ब के फॉर्म में उन्हें खिलाते थे, ये मैंने सुना। हाँ बट हाँ इस वो तरह तो से कि हाँ, मतलब जिन्हों ऐसे जिनकी जरूरत है, जिनको हम पूछते हैं, ये दिस इज रियली ridiculous thing which happened there. that's what I said कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर अब ये एक अलार्म हो गया कि हमने सेव द टाइगर कैंपेन शुरू किया, उसके ऊपर लॉ भी बन गया, जबकि एलिफेंट्स के लिए भी है. इफ यू सी कि एलिफेंट्स के ऊपर भी है कि हाथी दांत नहीं बेच सकते. द टूथ ऑफ एलिफेंट वी कांट सेल, बट बिकता ही है ना. तो 10 लाख से 27,000 है, तो इट्स वेरी अलार्मिंग. और उसमें से इट आई रेड दैट 5,600 आर लाइक बॉन्डेड लेबर एलिफेंट्स. होता है ना, हम लोग देखते हैं वो घूमते हैं इधर से उधर लेके, ऊपर बैठा होता है उनके, तो इट्स लाइक बॉन्डेड लेबर का काम लिया जा रहा है.
So I think this is a time, and it's good that this has been included as one of the significance of biodiversity uh, this year. So that's my view on that. It's very Sir, unfortunate. one question I have received from the audience, Yeah, that assembling of solar plants is too much costly, as we know that. So in the future, any other alternate for solar plant? As human is very clever, he knows that the quantity of natural sources is limited, so he has to develop electric bike and car, etc. But what about industry to develop for the preparation of any industry. pesticide? I don't know. I don't know. It is not correct. Yes, so like the solar panels are expensive, but I said that Exactly. there are policies in place where 90% up to 90% subsidies are given. In Delhi, government is giving 90% subsidy. So if you actually relate it to a hydroelectric power plant or a thermal power plant or I would say any other power plant, gas power plant. So the solar power is very cheap from that perspective. If we consider the subsidy in place, it's clean. It's everything is there, and that is the future. Now, if you see, I don't know if you have not read it. If just see the facts in India. There was only one company which used to manufacture solar panels in I would say 2001 to, if I remember vaguely, and the number of panels I'll take it out in the I would say the output roughly. If I remember, it was 50 megawatt capacity that India had that time, which has been increased to 900 megawatt के ऊपर की कैपेसिटी हमारे पास है अभी सोलर पावर की इंडिया में जनरेशन की कैपेसिटी है और लाइक लॉट ऑफ मनी हैज बीन इन्वेस्टेड जहाँ पे जगह है इंडस्ट्री के लिए फिर विंड पावर का एक्सप्लोरेशन चल रहा है इंडिया में कुछ जगह पे है स्पेशली विंड पावर के लिए देख रहे हैं कि कैसे करें सो इफ यू गो टू नेदरलैंड्स एंड ऑल मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन देयर सो विंड पावर इज अ अल्टरनेट even hydroelectric is a very good way of generating this but the problem is कि hydroelectric के लिए जो जनरेशन के लिए टूल चाहिए उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपके जनरेटर में इधर कोल से रन है या गैस से रन है तो वहाँ पे डिस्चार्ज बहुत है कार्बन मोनोऑक्साइड का सो इट इज नॉट एक्सपेंसिव सर मैम whosoever has asked the question solar power is something yeah, it takes space that is a big problem तो स्पेस के लिए भी अगर आप देखेंगे जो पैनल्स 10 से 15 साल पहले बने थे और जो अब पैनल बन रहे हैं उसमें स्पेस जो है 1/4 हो गया एंड दे आर ट्राइंग टू सी कि हम एक जैसे चिप होता है छोटा सा हमारा हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के अंदर या हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर तो उस टाइप का देयर आर कंट्रीज दैट आर वेरी इफेक्टिवली वर्किंग एंड इंडिया इज लाइक इन टॉप 3 कंट्रीज टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी कि आपके एक सोलर जो पैनल है वो छोटा छोटा पैनल हो इतना इतना छोटा पैनल हो जाएगा जो आज की डेट में हम 1 फीट बाय 2 फीट का लेते हैं Thank you, Dr. Vishwas, as थैंक यू for sharing your views. And थैंक यू वेरी मच थैंक्स as we know that you are a motivational speaker, so what message, what your thoughts, what new ideas you want to share with us on the present platform? I would say that this is something there is nothing permanent in the life like there's nothing permanent there is nothing that is going to exist there are good times bad times there are hurdles so this is one of the thing that has really I would say everything is not bad so the positive sides are that we are alarmed with this on the wildlife also with this small exercise I could google and see that from 10 lakh we have come down to 27,000 so what I'm saying that let's not really think that life is over and let's also not be under assumptions that something is going to like stop it we have to live with it so please take that in your consideration a lot of people yesterday somebody was telling me for some award ceremony in end of August they wanted me to have as chief guest and somebody advised me कि उनको बोलो कि अक्टूबर में कर दीजिए कि अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगा so just for everybody information that average development time of a vaccine in the world is 16 years 16 और सिर्फ एक एग्जाम उसमें जो है एक ही एक्सेप्शन है आज तक सार्स की वैक्सीन जो 4 साल में आई थी
minimum 4 years, but 16 years is a fact. अब ये HIV जो है 1982 में आया था, अभी तक वैक्सीन नहीं है ना हमारे पास, सो उसके ऊपर मत डिपेंडेंट हुई, बी वेरी पॉजिटिव। और बहुत सारे लोगों को अभी जॉब्स का इशू है, बिजनेस का इशू है, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जो है यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन। बैक टू बेसिक्स जो हमने बात की, वो इसीलिए बात की बैक टू बेसिक्स थी कि हम अपने अंदर वी शुड सी कि हम क्या, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमारी क्या पॉजिटिविटी थी जिससे वी कुड ग्रो इन अवर करियर, इन अवर लाइफ, या हमारे पेरेंट्स ने क्या ऐसा किया कि वो आज हमें यहाँ तक लेके आ पाए। सो उन चीजों को हमें अपने अंदर वी हैव टू हैव अ लुक इनसाइड कि हमारी क्या पॉजिटिव थिंग्स थी या क्या बेसिक्स थे, क्योंकि ऐसे होता है ना कि लाइक probably when we started career, I started career, I was not allowed to take a taxi on a tour, so I used to take auto, bus, ठीक है। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर जगह पे एक बढ़िया सी बड़ी गाड़ी आती है पिक करने ले जाने, ठीक है। तो अब इस टाइम पे लोगों के ड्राइवर छोड़ के चले गए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, कि अपने Go back बेसिक्स to को आप basic. स्ट्रॉन्ग कीजिए, Exactly, ह्यूमैनिटी exactly. को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि दीज आर थिंग्स। अब एक चीज लॉकडाउन ने क्या एक्चुअल में हमें रियलाइज कराया है, लॉकडाउन ने बहुत बड़ी चीज रियलाइज कराई हमें, ठीक है। लोगों ने लाइक वी स्टार्टेड रियली लुकिंग फॉर कि यार मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहा हूँ, अपने रिलेटिव से नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, बट हैव यू एवर थॉट कि ओवर लास्ट 1 डूइंग व्हाट्सएप टू ईच अदर, वी आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। तो उस चीज को रियलाइज किया ना मैंने लॉकडाउन के अंदर, मैं वी वर सो दिस थिंग इनसाइड हाउस कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एकदम लॉकडाउन को लोगों ने जाके मिले भी एक दूसरे को, जिन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी 4-4 साल, जी and बिल्कुल. few things have come virtual because of the threat we have to us. But what I'm saying that please be positive, look for positives within us, within me, that what is my basic strength, what is different I could do, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर मैं प्रेसिडेंट और सीईओ ऑफ अ कंपनी बन गया तो मैं मेरे को मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, बट probably I was very good in creating a solution, तो सोल्यूशन क्रिएट करना शुरू करें। So what I'm saying, this is Exactly, बिल्कुल सही कहा सर। मैं एक फर्स्ट इसमें कहना चाहूंगी, all water has a perfect memory. All water has a perfect memory and is forever trying to get back to where it was. वही चीज हमें अपने जीवन में लाना है। मैंने भी ये कोविड-19 ये जो पीरियड था लॉकडाउन, सबसे ज्यादा मैं क्लोज रही हूँ वो नेचर के क्लोज रही हूँ। हर चीज हम लोग, और उसी में ही हमें अपने तो मतलब इसको बड़ा पॉजिटिव लिया है। I would like that's how I started, that I would really praise you, and it is inspiration for many, even myself, like you're taken it very very positively. I think you're not probably, I don't know much, pardon me for my ignorance, but maybe in last 1 year I don't think you have done so many webinars and things which you have done in 2 months, and see एग्जैक्टली. all positive, you have थैंक been यू. very positive, real inspiration. Sir, one thing, Dr. Vishwas, one thing I just want. Yeah, You are also a singer. So I want you can please sing a beautiful song for us. सॉन्ग भी बता दो आप, सॉन्ग कौन सा सॉन्ग? Any. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। So I have like finished it at a hope. Thank you so much, sir, for coming in Thank you very present much. platform and Thank motivating you. us and sharing your views on the Thank you. I hope biodiversity. it And was beneficial, or I don't know how much, but yeah. people want sing one more song. The, Sorry, one song in English. इंग्लिश में यार मुझे नहीं आता For इंग्लिश में, मेरे Bengali. बेट Bengali. In बंगाली Bengali. Yeah. बंगाली গীতং গীতং গোলে এই মাদোলে তানা তোলে গারানন্দ গো চলে আকাশ ভামরে যোচনায় আই ছুটে সকলে
এই মাটিরে ধরা কলে আজ হাসলি কলো রোলে নূতন জীবন গড়ি আয় আয় রে আয় লগন বয়ে যায় মুরগিরা সব হাঁকে কবর में दे आए आए रे आए लगन बोए जाए मुर्गिरा सब हाके कब्र में दे आए आए रे आए आए रे आए आए रे आए आए रे आए thank you Thank you, Dr. Vishwas, and thank you so much for thank you very giving much your precious and valuable time at thank you all the best to everyone platform. And please I thanks to all the participants for sparing your time with us in आत्ममंथन. और हम आगे भी हर शुक्रवार ये सीरीज जारी रखेंगे और कुछ नया लेके आएंगे. होप कर आशा करती हूँ कि सभी लोग इससे जुड़े और अपने थॉट्स अपने व्यूज यहाँ प्रेजेंट करें. थैंक यू सो yeah मच. that's very important thank you very much thank you everyone have a great evening thank you